everyone. Welcome to my YouTube channel PhD Digital Maths. So today we are going to solve the section B of sample paper 5. Already section A हमने complete कर चुके हैं. So section B same 20 questions. You need to attend 16 questions, each 1 mark. So first question is 21. Rajesh and Mahesh. Okay, we will start now. Rajesh and Mahesh are playing a game. In this game, 21. In this game, each player throws 2 dice and note down the number on the dice by the rules of the games. Mahesh needs to get 2 numbers such that their product is a perfect square. In order to win the game, what is the probability that Mahesh will win the game? Okay, dice 2 throw हो रहा है. So first, what are the possibilities? We will see. पॉसिबिलिटीज के लिए क्या करना है हमें पहले, अगर किसी को पता है देन वेल एंड गुड, नहीं पता है तो आपको रफ में लिखना पड़ेगा. कल भी ऑलरेडी मैंने सेक्शन ए में भी ऐसा ही क्वेश्चन था, सो हमने लिखा था. सो 1 2 1 3 अप टू 1 6. पूरा नहीं लिख रही हूँ, अगर इसका पूरा आउटकम्स आपको देखना है सो यू जस्ट गो द प्रीवियस वीडियो एंड चेक देयर. So this will be your 2 1 से लेके 2 2, thereafter 2 6. Next आपका 3 3 1 3 2 up to 3 6, then 4 1 4 2 up to 4 6. After that 5 1 5 1 5 2 up to 5 6, and last one 6 1 6 2 up to 6 6. So these are the total outcomes. How many total outcomes? 1 2 3 4 5 6. 6 again, this is 6 6 6 are 36. So total outcome is equal to 36. Now what is the favorable outcome? Favorable outcome के लिए what is the condition? First we need to see. Question is what is the probability? Yes, such that their product is a perfect square. जो ये जो ब्रैकेट में दो दो डिजिट्स दिए हैं उन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं हमें बताना है. अच्छा, 1 into 1 1, दैट इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 1. हो गया, एक मिला. 1 into 2 3, 3 किसी का स्क्वायर है क्या? नो. 1 into 3 3, सॉरी 1 into 2 2, 2 किसी का स्क्वायर नहीं है. 1 into 3 3, 3 भी किसी का स्क्वायर नहीं है. नेक्स्ट आपको आएगा 1 4 and 1 5. 1 into 4 4. Yes, 4 is a perfect square of 2. 1 into 5 5. No. 1 into 6, that is also no. Again 2 into 1 no. 2 into 2 4. So ऐसे ही आपको एक एक चेक करना है. So here you will get 2 2s are, then 3 3s are 9. Again 4 1, because 4 is a perfect square. Next 4 4s are 16. Again 5 5s are, then 6 6 are. So how many favorable outcomes? Favorable outcomes is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8. How many favorable outcomes? 8. So write down here 8. Therefore required probability is equal to 8 upon 36. So after simplification you will get 2 upon 9, which is the correct answer. Option B. Option B is the correct answer. Next question.
22 क्वेश्चन क्या है? दिस इज रिलेटेड टू एरिया ऑफ द सर्कल. ओके, इन द गिवन फिगर, if AB is equal to BC, that means AB is equal to BC is equal to CD. Okay, so that means this is 7, this is 7, this is 7. So ARC का रेडियस कितना होगा? 7, and BSD का रेडियस also 7. So question is, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन. ये जो शेडेड रीजन है इसका पेरीमीटर निकालना है. अच्छा, अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका निकाल देते हैं. ये जो ARC है उसका पहले निकालते हैं. ये क्या है? सेमी सर्कल है. सो पेरीमीटर ऑफ ARC, सेमी सर्कल. सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल? सर्कल का क्या है? 2 पाई आर. सो 2 पाई आर को सेमी सर्कल करेंगे तो ओनली 2 पाई आर अपन 2. सो पाई आर हुआ किसका? ARC का. सो अगेन BSD का भी क्या है? पेरीमीटर ऑफ BSD ऑल्सो सेम. पेरीमीटर ऑफ BSD. Okay, perimeter of BSD also same. That means 2 pi r upon 2 pi r. So हमें क्या करना है? ARS और BSD पहले इतना हम लोग निकाल देते हैं. That means pi r plus pi r करना है. pi r plus pi r, that is 2 pi r. किसका निकला? इसका निकला. तो इसका कैलकुलेशन पहले कर लेते हैं. 2 into 22 upon 7 into r. r means 7. So simplify होने के बाद 44 आया. किसका? ARS BSD का 44. Now APB and CQD बाकी है. So APB, perimeter of APB is equal to क्या होगा? Again 2 pi r upon 2, that is pi r. Same. Perimeter of CQD क्या होगा? CQD is equal to 2 pi r upon 2 pi r. Here again we will add this both. So 2 pi r. Now put the value 2 into 22 upon 7 into r is here 3.5, because यहाँ तक हमें लेना है सिर्फ रेडियस. सो ये 7 है तो PB कितना होगा? सॉरी, सेंटर पॉइंट से B तक कितना होगा? 3.5. सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन you will get here 22. यस 22. चलो सिंप्लीफाई करके दिखा देते हैं. 2 into 22 upon 7 multiplied by 35 upon 10. So 2 5s are 5 7s are 7 7 simplified. Answer is 22. But this is not the answer. हमें ORC plus BSD मिला 44. Now APB plus CQD मिला 22. So जो ये शेडेड रीजन है इसका पेरीमीटर 44 plus 22, that means 66 cm. Correct option is option D. Option क्या है? D is the correct option. Question number 23. What is the value of x if triangle ADE, similar triangle ACB, DEC is equal to 105 degree and ECB is equal to 65 degree. So figure हमारा दिया गया है. Let's see the figure. See, here is the figure. ADE, ABC given. यहाँ पे हम फिर से ड्रॉ करते हैं so easily आपको समझ में आएगा. So this is the triangle and here is the A, D, E, B, C.
Okay, this is the triangle. Given is what? E is 105. E angle जो है, this is 105 degree. This is 65 degree. And this is that given? No, चलो find out x. अभी x कैसे हमें मिलेगा? Let's see. अच्छा, ये 65 है, ये 105 है, ये 105 है. So here given is what? DEC is 105 degree. So DEA कितना होगा? DEA कितना होगा? 180 minus 105, that is 75 degree, because both are linear angles. So ये मिला हमें 75 डिग्री. हो गया. अभी नेक्स्ट और कहाँ से हम ढूंढ पाएंगे? लेट्स सी. डी का वैल्यू कुछ दिया है क्या? लेट मी चेक द क्वेश्चन फर्स्ट. डी इज गिवन. No, D is not given, but another one clue is given that ADE is parallel ACB. So ADE is similar ABC, not ABC, ACD. Just a minute. This is ACD. Okay. यहाँ पे ही ट्विस्ट पूरा है क्वेश्चन का. ADE is parallel ACD. ACD. That means यहाँ पे C का वैल्यू जो है D का वैल्यू वही है. So ये कितना होगा आपको? This will be your 65. छोटा सा हिंट दिया है, बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि ये जो सॉरी दिस इज ACB, ये जो नेमिंग में ही ट्विस्ट है. दिया है फिगर ABC ADE, बट सिमिलर जब साइन दिया है, लिखा है कि ACB लिखा है, ABC नहीं लिखा है. ACB सिमिलर टू ADE. दैट मीन्स व्हाट? C का एंगल किसके साथ इक्वल होगा? D के साथ इक्वल होगा. सो अभी इन ट्रायंगल ADE, A is missing, so we can write down 65 plus 75, that is कितना हो रहा है? For 140 degree. So x कितना होगा? 180 minus 140 is equal to 40. So अच्छा क्वेश्चन था, एक छोटा सा ट्विस्ट देके लिखा है. सिर्फ this part is very important. This part is very important because जो वहां पे सिमिलर का लिखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. चलो यहाँ पे मैं ना हाईलाइट करके लिखती हूँ, तो आपको भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि क्या है एक्चुअली. वो क्वेश्चन में दिया है ट्रायंगल ADE सिमिलर टू ट्रायंगल ACB. सो ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट, और जो कंडीशन बच्चे मिस कर जाएंगे, यहाँ पे D इज इक्वल टू C है. सो C 65 है तो D भी 65 होगा. ओके, सो करेक्ट आंसर जो है हमारा 40 डिग्री, ऑप्शन D. ऑप्शन D जो है वो करेक्ट आंसर है. Question number 24. Two triangles are similar and their areas कितना दिया है? 121 cm square and 64 cm square. Areas दे दिया है. If the median of the first triangle is 12.1, मतलब इसी का median 121 जिसका है वो, median is equal to 12.1. and another one is missing. Let's take that x. Okay, so अगर similar triangle है, so कौन सा theorem? The ratio of the areas of two similar triangles is equal to the square of the ratio of their corresponding medians. That means
121 upon 64 is equal to 12.1 upon x square, square of their medians. अच्छा, ये स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट, सो अंडर रूट 121 अपन अंडर रूट 64 is equal to 12.1 upon x. So 11 upon 8 is equal to 12.1 upon x. 11x is equal to 12.1 multiplied by 8. X is equal to 12.1 multiplied by 8 upon 11. So after simplification, you will get 8.8. So final answer क्या है? 8.8, option B. Next question 25. Find the value of 1 upon alpha plus 1 upon beta if alpha and beta are the zeros of the polynomial x square plus x plus 1. पहले polynomial लिख लो x square plus x plus 1. So alpha beta zeros है. So according to the polynomial, alpha plus beta क्या होगा? Minus b upon a. Here minus b is minus 1 upon a is 1. So minus 1. Alpha into beta, c upon a. That means 1 upon 1, 1. Alpha plus beta and alpha beta मिल गया. So अभी हमें क्या find करना है? 1 upon alpha plus 1 upon beta. So take LCM plus alpha beta, beta plus alpha. So 1 upon 1 is equal to, sorry, this is minus 1 upon 1 is equal to minus 1 is the answer. Option C is the correct answer. 26 question क्या दिया है? On choosing a number x from the numbers 1, 2, 3, question number 26. On choosing a number x from the numbers 1, 2, 3, 1, 2, 3, sorry, this is x from 1 to 3, okay, and y from 1, 4, 9, ये हुआ y. So what is the probability of pxy is less than 9? What is the probability of pxy is less than 9? So first क्या करना है? 1 को तीनों से मल्टीप्लाई करना है. चलो कर लेते हैं. पहले x into y करते हैं. So 1 into 1, first one, second one 1 into 4. This is multiplication sign देना है. Product बोला है 1 into 4. Third one is 1 into 9. Now 2 multiplied by 1, 2 multiplied by 4, 2 multiplied by 9. This is the product with the second number. Now 3 multiplied by 1, 3 multiplied by 4, 3 multiplied by 9. अच्छा, कंडीशन दिया है कि जो एक्स वाई है किसका प्रोडक्ट 9 से छोटा है. चलो अभी इन लोगों का प्रोडक्ट लिखते हैं. 1 into 1 कितना है? 1. यहाँ पे आपको 5, सॉरी प्रोडक्ट है ना 4, 4. Then this will be your 9. Again 2, 8, 18. Here 3, 12 and 27. So कितने नंबर यहाँ पे 9 से कम है? 1, 2, 3, 4, 5. 9 को काउंट यहाँ पे नहीं करना है. यहाँ पे वो लेस देन इक्वल टू नहीं दिया है, उसने डायरेक्टली दिया है लेस देन. सो 1, 2, 3, 4, 5. 5 favorable outcomes. So favorable outcomes कितने आए हमारे? 5. And what is the total outcome? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Total outcome 9. So probability, required probability is what? 5 upon 9. That is option
ए, 5/9 ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 27, चलो रीड द क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ n, यहाँ पे n का वैल्यू निकालना है। इफ a इज इक्वल टू 2 to the power 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 27 n का वैल्यू निकालना है। a इज इक्वल टू 2 to the power 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, b इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, c is equal to 3 to the power n multiplied by 5, and LCM of the ABC is given 2 to the power 3 multiplied by 3 to the power 2 multiplied by 5। LCM हम कब लेते हैं? जिसका डिग्री हाईएस्ट रहता है, हाईएस्ट डिग्री को हम कंसिडर करते हैं एज LCM। सो 2 to the power 3 है, 2 to the power 3 है, यहाँ पे 2 to the power 2 है, सो यहाँ पे 3 to the power 2 है, बट यहाँ पे तो 3 to the power 1 है, 1 है। सो n का वैल्यू कितने होने का चांसेस है? चांसेस आर 3 to the power n इज इक्वल टू 3 to the power 2, सो n इज इक्वल टू 2। अच्छा, इसे लिखेंगे कैसे? ABC, LCM ऑफ ABC, इसमें से ही LCM निकालते हैं। सो 2 का पहले निकालेंगे, 2 to the power 3 मल्टीप्लाई बाय 3 to the power n multiply by 5. So here will be 2 to the power 3, 3 to the power 2 and 5. So 3 to the power n is equal to 3 to the power 2, n is equal to 2. Then option D is the correct option. Question number 28, from the following figure, पहले फिगर हमें भी ड्रॉ करना है एक्सप्लेनेशन के लिए, नहीं होगा तो कैसे करेंगे? ये हुआ आपका राइट एंगल ट्रायंगल। सो दिस इज गिवन ए सी बी, राइट एंगल एट बी, दिस इज 4 and 3 एंड दिस इज 4। सो ए से कितना आएगा? ऑब्वियसली 5 आएगा। 9 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर इज इक्वल टू 25, 25 का अंडर रूट करेंगे तो 5 आएगा। ए सी निकल गया। तो अभी क्वेश्चन क्या दिया है? साइन ए कॉस ए प्लस साइन सी cos c, find out the value of this terms। sin a, अगर ये कंसिडर करेंगे साइन का फॉर्मूला क्या है? साइड ऑपोजिट टू द एंगल, दैट मीन्स BC अपन AC, हाइपोटेन्यूस, साइड ऑपोजिट टू द एंगल अपन हाइपो। cos a का साइड एडजेसेंट टू द एंगल, सो AB अपन AC प्लस साइन C के लिए अगेन सेम, साइड ऑपोजिट टू द एंगल, सो C का ऑपोजिट क्या है? AB, सो AB अपन AC cos C का BC अपन AB, सॉरी AC नॉट AB, AC। सो यहाँ पे AB, चलो वैल्यूज डाल देते हैं। BC का वैल्यू दिया है 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 4/5 प्लस अगेन AB इज 4/5 मल्टीप्लाइड बाय 3/5, सो 12/25 प्लस 12/25, सो 24/25 आपका आंसर है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। 29 क्वेश्चन, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन शोन इन द ग्राफ। अच्छा, जो ग्राफ के अकॉर्डिंग हम जाएंगे तो इक्वेशंस आर व्हाट? पैरेलल लाइंस जब रहते हैं, then in the graph the pair of linear equations represent parallel lines. So since parallel lines never intersect, so they have no solution। क्या है आंसर? नो सॉल्यूशन। पैरेलल लाइन कभी इंटरसेक्ट होते हैं क्या? नहीं, सो सॉल्यूशन ही आएगा नहीं। अगर इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है देन नो सॉल्यूशन। वो अपने रास्ते गया है, ये अपने रास्ते है, तो सॉल्यूशन आएगा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 30, consider a triangle ABC।
कंसिडर करना है मतलब क्या करना है भाई, ड्रॉ करना है। चलो ड्रॉ करते हैं, कर लिया। एबीसी ट्रायंगल ड्रॉ हो गया। DE is parallel BC. This is ABC. This is DE. अच्छा, DE पैरेलल AB होगा तो ट्रायंगल ADE is parallel triangle ABC. कैसे? By AA similarity. कैसे A हुआ मैम? ये पैरेलल है तो D इज इक्वल टू B, E इज इक्वल टू C, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंड A तो कॉमन है तो पैरेलल हो गया। अच्छा, पैरेलल हुआ तो क्या होता है? Ratios of the sides are equal, so we can write here AD upon AB is equal to AE upon AC is equal to DE upon BC. इतना जो मतलब सिमिलरिटी है पता चलने के बाद जितना इंफॉर्मेशन चाहिए हमने लिख दिया। अभी क्वेश्चन में जाते हैं। गिवन इज व्हाट DE is equal to 2/3 of BC and area of ABC कितना दिया है? 81 cm square. So then find the area of the ADE. अच्छा, इसका फॉर्मूला और एक भी क्या है? एरियाज ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द साइड्स। सो यहाँ पे वी कैन राइट एरिया ट्राइंगल ADE अपन एरिया ट्राइंगल ABC is equal to, I am going to use this one, DE upon BC, DE square upon BC square. ये भी ट्राइंगल का एक थियोरम है। सो DE क्यों लिया? बिकॉज गिवन जो है हमारा DE इज इक्वल टू 2/3 ऑफ BC ऑलरेडी दिया है। सो वहां पे DE के जगह पे हम 2/3 ऑफ द BC डाल पाएंगे। सो यहाँ पे ही डाल देती हूँ 2/3 BC square upon BC square. So after simplification BC square 4/9. So यहाँ पे area of the ABC is already given. Area of triangle ADE upon 81. ABC का already 81 दिया है. So simplify करेंगे तो 9 1s are 9 9s are 9 and 4 multiply करेंगे तो area ADE is equal to 36 cm square. Option, correct option is option C. ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। ABC is an isosceles triangle which is right angle at B. Okay, right angle isosceles triangle, that means जो भी बेस और परपेंडिकुलर है वो इक्वल हो जाएंगे। राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल का वही रहता है ना। तो पहले ड्रॉ करते हैं छोटा सा ट्रायंगल। दिस इज व्हाट आवर राइट एंगल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल। थोड़ा तो बड़ा आया है बट इट्स ओके। सो दिस विल बी आवर, एंड वो राइट एंगल बोला है बी पे। यस यस, दिस इज बी. So we will write down like this A, B, C. Next is given AB is equal to 4. B is equal to 90 given. AB is equal to 4 given. What is the length of AC? AB 4 है तो BC कितना होगा? Obviously 4 because isosceles triangle है। अरे यहाँ पे तो हमने एंगल का साइन दिया है, एंगल का साइन नहीं आएगा। AB is equal to 4, therefore AB is equal to BC because isosceles triangle. Isosceles triangle, so is equal to
4 आ जाएगा। अभी AC इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, दिस विल कम अंडर रूट। सो 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट, 16 प्लस 16 अगेन अंडर रूट, 32 अंडर रूट। नाउ 32 का रूट क्या है? 32 का रूट है हमारा 32 को हम लोग 16 टूजा भी लिख पाएंगे। ऐसे दो फैक्टर्स को चूज करना है जैसे कि एक फैक्टर का एटलीस्ट अंडर रूट रहेगा, दैट इज द परफेक्ट स्क्वायर होगा वो नंबर। जैसे कि 16 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 4, सो 4 अंडर रूट 2 excuse me. So correct answer is option D. 32 question. Amit and Prem are very good cricketers and also represented the school team as district and even state level. One day after their match, they measured the height of the wickets and found it to be 28 inches. मतलब यहाँ पे एक छोटा फिगर दिया है, this is PQ और ये लेटर क्या है पता नहीं, यहाँ पे दिया है this is 28 inches. Wicket 28 inches. They mark the point on the ground as shown P. This is P. Yes, if cot P is equal to 3/4. Cot P, that means ये cot का जो फॉर्मूला है हमारा side adjacent to the angle, that is PQ. I think this is S. Upon side opposite to the angle, that is QS. Okay, is equal to 3/4. बट यहाँ पे क्या है, ये रेशियो में दिया है। अगर आप बोलोगे तो डायरेक्टली हम लोग निकाल सकेंगे ना मैम, ये तो पी क्यू का करके, बट वी डोंट हैव द वैल्यू ऑफ पी एस। एंड सेकेंड थिंग इज गिवन कॉट पी इज इन द रेशियो, हमें रेशियो में दिया है, एग्जैक्टली वैल्यू हमें नहीं पता। सो पी क्यू का निकालना है, बट हमारे पास क्यू एस है, तो पी क्यू एज इट इज रखो, क्यू एस के जगह पे हम डालते हैं 28, दैट इज 3/4. So after simplification, you will get PQ is equal to 21 inches. Okay, so option C is the correct option. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 33 क्वेश्चन क्या है? Co-prime numbers is a set of numbers. 33 ऑप्शन दूसरे पेज में है, we will see. Co-prime numbers is a set of numbers which have one as their dash. अच्छा, एक तो प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स जो है उनके फैक्टर्स तो रहते नहीं है, उनके फैक्टर्स क्या होते हैं? 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। और को प्राइम नंबर उन्हीं को बोला जाता है जिनका HCF इज इक्वल टू 1 होता है। सो ऑलरेडी दिया है को प्राइम नंबर्स इज अ सेट ऑफ नंबर्स which have 1 as their HCF is the correct option. Let's see whether option में दिया है कि नहीं। Yes, HCF is the option C, correct option वही है। Now 34 करते हैं। If one of the zeros of the polynomial x square minus 7x minus 8, so ये polynomial given है, अल्फा एंड बीटा लेट 2 zeros, अल्फा दिया है -1, हमें फाइंड करना है बीटा। सो अकॉर्डिंग टू आवर क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, राइट? सो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे कितना है? 7। सो अल्फा की जगह पे -1, बीटा एज इट इज रहेगा। So बीटा आएगा आपका 7 + 1 that is 8. Correct option is option C. Now question number 35. Question क्या दिया है? An arc of length
ऑफ लेंथ 19 सेंटीमीटर। ओके, सर्कल का लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला क्या है? लेंथ ऑफ आर्क फॉर्मूला इज थीटा अपन 360 इंटू 2 पाई r। सिर्फ यहाँ पे आपको वैल्यूज पुट करने हैं। लेंथ ऑफ द आर्क दिया है 19, थीटा अपन 360 इंटू 2 इंटू 22 अपन 7 इंटू 30। डन। नाउ सिंप्लीफाई, 2 1s are और ये 180। अगेन 30 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 6। दिस विल बी योर 2 3s are 11। So 19 is equal to theta into 11 upon 3 into 7. So 19 into 21 upon 11 is equal to theta. So ये जो है आपको 19 into 21 399 अपन 11 is equal to theta. So ये आपका डेसिमल में आएगा 36.27 समथिंग। सो इससे राउंडेड ऑफ करके आपको 36.27 आएगा, उसे राउंडेड ऑफ करके 37 डिग्री इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन बी। ओके, 36 क्वेश्चन, इवेल्युएट साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इफ √3 tan थीटा। 36 का साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हमें फाइंड आउट करना है। गिवन क्या है? √3 tan थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा। ओके, √3 tan थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा। अच्छा, नाउ tan थीटा क्या है? √3 आई कैन राइट हियर साइन थीटा अपन कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा। तो यहाँ पे ही हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। साइन थीटा सिंप्लीफाई होगा, √3 3 सिंप्लीफाई होगा तो √3 रहेगा सिर्फ। सो आपको 1 अपन cos थीटा इज इक्वल टू √3 एंड cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपन √3। सो cos थीटा का वैल्यू हमारे पास मिल गया। अभी हमें क्या करना है? cos थीटा का वैल्यू यहाँ पे पुट करना है। साइन स्क्वायर थीटा को वी कैन राइट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय यूजिंग द आइडेंटिटीज, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर थीटा। सो 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपन √3 का होल स्क्वायर। सो 1 माइनस 2 अपन 3, 3 माइनस 2 एलसीएम लेना है। So 1 upon 3 is the correct answer. कहाँ पे है? कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन B is the correct option. Question number 37 देखते हैं। How many zeros will be there for the polynomial x minus 2 whole square plus 4? चलो पॉलिनोमियल पहले लिखते हैं। fx is equal to x minus 2 whole square plus 4. For zeros, fx is equal to 0 हमें पुट करना है। fx is equal to 0. So x minus 2 whole square plus 4 is equal to 0. x minus 2 whole square is equal to minus 4. एंड अच्छा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, बिकॉज x माइनस 2 का होल स्क्वायर -4 है, तो x माइनस 2 क्या होगा? √-4 कभी होगा क्या? नहीं, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। हेंस द पॉलिनोमियल हैज नो जीरोस। नो जीरोस मतलब ऑप्शन ए 0। ये क्यों पॉसिबल नहीं हुआ समझ में आया? क्योंकि RHS में -4 है और यहाँ पे स्क्वायर किया गया है। ओके, स्क्वायर किया गया है, यहाँ पे -4 है। ये अंडर रूट हम लोग निकाल नहीं पाएंगे, दैट्स व्हाई नॉट पॉसिबल। 38, कैलकुलेट द मिनिमम नंबर बाय विच √8
should be multiplied so as to get a rational number. अच्छा, अंडर रूट 8 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 4 ऑप्शन दिया है, उसमें से कौन सा छोटा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक रेशनल नंबर मिलेगा। चलो अभी देखते हैं। एक तो छोटा नंबर यहाँ पे अंडर रूट 2 है, सो पहले वाला उसको ही करके देखते हैं। अंडर रूट 8 अंडर रूट 2 करेंगे तो अंडर रूट 16, अंडर रूट 16 का क्या है 4, सो यहीं पे हमें आंसर मिल गया। सो अंडर रूट 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर भी आपको करके दिखा रही हूँ। अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 करेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट 24 आएगा। अंडर रूट 24, 24 इज इट ए परफेक्ट स्क्वायर? नो, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर इसे भी करेंगे तो हमें आएगा 2 अंडर रूट 6 आएगा। ओके, दिस इज नॉट अ रेशनल नंबर, सो गलत है। सिमिलरली अंडर 5 भी नहीं होगा, अंडर 6 भी नहीं होगा, सो करेक्ट ऑप्शन इज अंडर रूट 2। क्वेश्चन नंबर 39। 39 क्वेश्चन, अगेन ट्रिग्नोमेट्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ x अगर 4 माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री अपन cot x इंटू tan 60 डिग्री इज इक्वल टू 3.5। अच्छा, ओनली cot x छोड़ के हम हर किसी का वैल्यू डाल सकते हैं। 4 माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री, दैट मीन्स 1 अपन अंडर रूट 2 होल स्क्वायर अपन cot x into tan 60 degree is equal to under root 3. So here I am just converting the decimal into fraction, 35 upon 10. So here we will get 4 minus 1 upon 2 upon under root 3 cot x is equal to, after simplification, 7 upon 2. It will be 8 minus 1 upon 2 upon under root 3 cot x is equal to 7 upon 2. So here again 7 upon 2 upon under root 3 cot x is equal to 7 upon 2. अच्छा, यहाँ पे 7 upon 2 7 upon 2 सिंप्लीफाई हो जाएगा। अंडर रूट 3 cot x इज इक्वल टू 1 आएगा। cot x इज इक्वल टू 1। इसका नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे कर रही हूँ। चलो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप है। सो cot x क्या होगा, 1 अपन अंडर रूट 3। अच्छा, cot में अंडर रूट 1 अपन अंडर रूट 3 कब आता है, या वही बोला है, पूछा है, क्या है आंसर? नहीं। सो cot 60 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपन अंडर रूट 3। सो x का वैल्यू क्या है, 60 डिग्री। ऑप्शन डी, डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। चलो हो गया। लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन बी। इफ अगेन ट्रायंगल से है, सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ए बी सी आर सिमिलर दिया है, देन इवेल्युएट द लेंथ ऑफ द ए सी। क्वेश्चन नंबर 40, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, दिस इज गिवन एंड फाइंड, हाँ व्हाट टू फाइंड, ए सी हमें फाइंड करना है। And another thing given, perimeter of ABC. Perimeter of triangle ABC is equal to 20 centimeter given. Perimeter of PQR also given, 40, and PR 8 centimeter given. So अभी similarity अगर है तो we can write here AC upon PR is equal to perimeter of triangle ABC upon perimeter of triangle PQR। यहाँ पे स्क्वायरिंग नहीं होगा। स्क्वायर कब होता है साइड का, जब एरिया का रेशियो हम डालते हैं तभी साइड स्क्वायर होता है, पेरीमीटर में नहीं होता है। सो AC की जगह पे AC रखो, यहाँ पे 8, then this will be your 20, this will be your 40। हो गया सिंप्लीफाई, देन
Okay, बहुत ही फास्ट सिंप्लीफाई कर दिया, सॉरी. 0 0 simplify, 2 1s are 2 2s are, again 2 1s are 4s are. So AC का वैल्यू क्या आया? 4 सेंटीमीटर. Option A is the correct option. Done. Section B also over of sample paper 5. So देखते देखते हमने easily 5 sample paper cover कर लिए. In the next session sample paper, sorry, section C I am going to send. क्यों थोड़ा थोड़ा भेज रही हूँ, एट अ टाइम भेजूंगी तो बहुत लेंथी वीडियो होगा एंड आपको भी बोर लगेगा. एंड वन मोर थिंग, the PDF of the sample paper 5, I'm at every day in the sample papers. In the description box you will get the PDF. I'm attaching the PDF also. So question के लिए आप PDF refer करो and solution आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है then refer the video. Mostly मैं सजेस्ट करूंगी पहले ट्राई करो, अगर नहीं आ रहा है तो वीडियो डेफिनेटली रेफर करो, आपको समझ में आ जाएगा. और थर्ड थिंग इज व्हाट, अगर आप लोग सिर्फ सैंपल पेपर भी सॉल्व करके जा रहे हैं, क्योंकि इतने बहुत है सैंपल पेपर, हम लोग इतने वैरायटी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, तो आपको 50% तो वहां पे आ जाएगा. जो कि मतलब बहुत कम प्रैक्टिस किए हैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ, और जो अच्छे से प्रैक्टिस किए उनके लिए तो कोई दिक्कत ही है नहीं. ओके, सेम अगर आपको नहीं आ रहा है कोई समझ में, कोई सम में, जस्ट put the message in the comment section. As early as possible I will try to clear your doubts. Okay, thank you once again for watching my videos. So please support like this only. Do like, share and subscribe to my YouTube channel PhD Digital Maths. Thank you. See you in the next session. Bye bye.